Okay, so I welcome you all for this session. So in this session, we have with us Mohammad Awais from Washington, DC, Farahat Ali from Cambridge University, Dr. Yukti, she is a faculty member in JIMS. Farahat and Awais are also the faculty member as well as the PhD student doing continuing their research work. So in this session, we will discuss about the qualitative analysis using NVivo. In some of the previous lecture, we have discussed about the various capabilities of NVivo. And then last time, I remember we discussed that we should work with the real data. So we should get some textual data from some respondents, and then we can work on it. So Dr. Yukti collected some data from some students. So I will request Dr. Yukti first to give a brief about what the topic is all about, what are the questions, and what sort of data we have. Dr. Yukti. Thank you so much, sir. I think this platform is great for new learners, for learners who are midway, and of course for experienced ones, because I think with every session that you do on such platforms, there is some learning for everyone. So taking this particular work that I had initiated, it's a simple, very simple survey that we thought we would do for our students. Post-COVID, we saw that there was a lot of change in their behavior. In fact, we felt that there were times when we had to do some wellness sessions for our students, and many a times they were on their mental well-being, and though initially some of the students could not understand what we are doing and why we are doing, we did see that there was some motivation that was driving them towards both physical as well as mental wellness sessions. So just to understand what is their objective, what is their aim, what do they understand of wellness, because there were instances where we felt that they were doing all these things because their friends were doing and not because there was an inner drive. And then there were instances where we felt that some students individually were very motivated, but because of peer pressure, they did not move forward. Excuse me, they did not want to participate in such sessions. So just to gain a basic understanding, and we thought that if we do some deep diving into their sentiments and understand what is their opinion or attitude towards both mental wellness as well as physical wellness, we would be able to plan things better for them. And of course, it would be a great area of research, not just for any specific country, but I think world at large. So that's the whole objective. If I talk about the questionnaire that we developed, we thought that other than gender and family structure, we did not want to pose them any questions beyond that, because it was a student community that we were talking to. So one was gender and second was family structure. Beyond this, we thought that first let us ask them what is, whether they are aware of physical wellness and mental wellness, and if there is an awareness level, do they really think if it is important or not? And once they clarified that it was important, the questionnaire moved in one flow, and those who said that it is not important, the questionnaire terminated for them at that particular stage. So their basic understanding of wellness, then followed by that, what is it that they do for their own physical wellness? What are the actions that they take for their physical wellness? How much time do they spend on their physical wellness in 1 week? Then we thought it is pertinent to ask them if they receive any help, any guidance, mentoring, training for their wellness, and how does that wellness that they're focused on impacts their daily routine. And in this particular question, we thought we will ask them to narrate an experience. Then going forward, we did ask them whether it is just that they get motivated by seeing others, or do they also take charge and help handhold others, advise others for others' physical well-being or not. And similar questions were then posed on mental wellness. So beginning with whether they think it is important or not, then what is it
if they do anything for their mental wellness or not, and then how much time do they spend in a week, do they receive any help, any guidance, and do they help others for their wellness or not. Now, I'll tell you why we pose similar questions on physical and mental wellness. Because one assumption was that despite knowing so many things, that this is not going right, this is not in the direction that it should be moving. For instance, I know that I'm putting on a lot of weight because everything is happening online and I'm not going out anywhere. Despite that, I may not focus on my own health. I may neither look at my physical health nor my mental health. However, the social media that I'm consuming every day is talking about programs on mental wellness and programs on physical wellness. So in such a situation where I know that I am not doing anything, but I'm witnessing so much on other platforms, am I doing anything about it? Does it strike me anywhere? Or if I see anything on social media of that sort, do I really get influenced? And if I get influenced, do I have the courage to influence others? And when I say courage, I am particularly talking about mental wellness, because I felt that it might be possible that they want to do, they can motivate others for physical wellness, asking anybody to go out and join gym or follow a particular diet. But I felt that mental wellness was something that they may not want to talk about or help anyone else with their condition. So towards the end, in fact, there are two questions that I've asked where I particularly asked them, do you pay any amount for your consultation for your physical or mental wellness, or both? Specifically because I thought it's one thing that we should know whether people understand that there is a consultation that can be paid to get some sort of wellness on both these fronts. And then just ended with when you last felt good about yourself, and was it due to physical wellness or mental wellness or both, so that towards the end we get a fair idea that feeling good and being physically fit and mentally fit, are they related to each other or not? So that's about it. That was the objective of the whole work. Thank you, sir. So अवैस, अब आप इसमें बताइए कि ये काम है हमारे पास और मैम ने गूगल ड्राइव के ऊपर एक्सेल फॉर्मेट में कुछ डाटा ले लिया है। तो अब इसके ऊपर हम अगर एक बिल्कुल नेव रिसर्च स्कॉलर की तरह अगर हम सोचें कि एक दिमाग में एक आइडिया था कि हम ये फिजिकल और मेंटल वेलबींग के बारे में पूछें, हमने कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? ओके सर, इसका सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि हम स्टार्ट करते हैं फाइल से, और जैसे जैसे क्वेश्चन, अच्छा जहां पे भी आप चाहें हमें इंटरप्ट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू वेट फॉर द टाइम कि जब मैं पॉज लूं या कुछ भी, तो हो सकता है कि हम वहां से फिर बेहतर डिस्कशन की तरफ चले जाएं। तो हम उस फाइल से स्टार्ट करते हैं सर, और फिर देखते हैं हम उसमें से क्या कर सकते हैं। पहला तो उसका जो एक मेथड है वो तो है कि आप एनविवो के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वो तो आई थिंक सबको पता है, अब 3-4 वीडियोस पहले भी बन चुकी हैं। दूसरा उसका स्टेप ये है कि हमने इंपोर्ट करना है डाटा उसमें। वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि ये हम यूजुअली जो यूज टू होते हैं MS वर्ड की फाइल पे, जिस तरह से आपने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो में कहा था शायद कि चूंकि गूगल फॉर्म है एक्सक्यूज मी, गूगल फॉर्म है, ये बहुत सारे सर्वे मंकी हैं, बहुत सारे हैं वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वहां पे डाटा कलेक्शन ज्यादा आसान है। तो वो फिर हमारे पास एक्सेल में या कुछ दूसरी फॉर्मेट्स में डाटा आता है, तो वो वर्ड फाइल नहीं होती, फिर उसको हमने किस तरीके से इंपोर्ट करना है। तो वो दूसरा स्टेप तो ये हो गया। तीसरा स्टेप फिर ये होता है कि हमने उसमें फिर अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है इंफॉर्मेशन की। इसमें बेसिकली होते तो थीम्स ही हैं कि आपने थीम्स निकालने हैं, जिसको ये कोड्स का नाम देता है। अब वो थीम्स हमने कैसे निकालने हैं, वो अगेन इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच वाला हिसाब है। अगर तो कोई थ्योरेटिकल आपके पास फ्रेमवर्क है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, होना चाहिए तो सपोर्ट कर रहा है, और वो आपको पहले ही बता रहा है कि ये डाटा इन कैटेगरीज में, इन थीम्स में, इन कोड्स में फिट आ सकता है, तो वो आपको पहले क्रिएट कर लेना चाहिए। और अगर आप इंडक्टिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं और आपका जो रिसर्च स्कॉलरशिप है वो बिल्कुल एक न्यू चीज को एक्सप्लोर करने जा रही है, तो उसमें आपको थ्योरी जो है या जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है वो ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप चाहते हैं कि डाटा आपको गाइड करे कि आपने किस तरफ जाना है, तो फिर वो इंडक्टिव अप्रोच, वो फिर आप
जैसे जैसे डाटा देखेंगे उसमें ऑटो कोडिंग भी आ सकती है, और आप अपने सेंस के मुताबिक भी मैनुअल कोड्स में पॉपुलेट भी कर सकते हैं। तो सर आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द फाइल। फाइल की कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैं वो फाइल शेयर करने लगा हूं सर। ये फाइल है आई थिंक, राइट। फर्स्ट में तो वो टाइम स्पेन, कब उन्होंने टाइम फिल किया, किस डेट को किया, जेंडर है, फैमिली स्ट्रक्चर है, वी आर अ फैमिली ऑफ 4। तो अगर इसमें हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हमने उनको दिए हैं या हमें रिसीव हुए हैं, तो आइडली स्पीकिंग हमने इसको भी क्लोज एंडेड को कंसिडर करना चाहिए अगर इसमें कोई ऐसी कोई यूनिक चीजें नहीं है, रिपीट हो रही हैं। ये भी और अब ये कंसीडर होगा क्लोज एंडेड, ये भी क्लोज एंडेड है, ये भी क्लोज एंडेड है। यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी कि आई एम सॉरी जस्ट अ सेकंड सर, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं ये वाले, यहाँ से लेके और आखिर तक। जिस तरीके से एसपीएसएस में होता है कि हमें एक आइडेंटिफिकेशन देना, मार्क देना होता है, एनवीओ के अंदर दो चीजें हैं। एक तो जब आप फाइल इंपोर्ट करते हैं, एक तो है कोड्स उसमें से निकलते हैं, और दूसरी चीज ये है कि केसेस। अगर वीडियोस पहले देखी हुई हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी हम सब पार्टिसिपेंट्स हैं, तो केसेस होते हैं इंटरव्यूवीज वी कैन से, या अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से डाटा ले रहे हैं तो जो आपके यूनिट ऑफ एनालिसिस कह लें आप, जो पर्संस हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, कुछ भी, तो वो हो सकता है। तो हमने उसको आइडेंटिफिकेशन देनी है। अगर हमारे पास सर्वे की फाइल है तो वो कुछ भी हो सकता है। वो अगर आप ईमेल आईडी, अगर आप अपना प्रोजेक्ट पे काम करें तो वो ईमेल आईडीज भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 भी हो सकता है, उनका नाम भी हो सकता है। और आपको ये कतई जरूरत नहीं है कि उसको स्टार्ट में रखना है। अगर आपने एनवीयू में डाटा ये यूज करना है, आप कहीं पे भी उनको क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से एक बॉक्स इंसर्ट करता हूँ, जिसे मैं नाम देता हूँ रिस्पोंडेंट्स का, और यहाँ पे मैं 1 कहता हूँ, यहाँ 2 3 4 5 6 जस्ट रैंडमली 7 8 9 10 11, ये नाम भी हो सकते हैं। 18 हमारे पास रिस्पोंडेंट्स हैं। तो ये फाइल मैंने कर ली सेव। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह का अगर हमारे पास डाटा है जो हमें इंटरनेट से मिलता है, हम डाउनलोड करते हैं, उसको हमने एनवीओ में इंपोर्ट कैसे करना है, फिर उस पर वर्किंग कैसे करनी है आगे। तो अब मैं ओपन करता हूँ एनवीओ और उसमें ये फाइल हम इंपोर्ट करते हैं। ये मैंने प्रोजेक्ट पहले ही स्टार्ट कर लिया है, वरना आप यहाँ से, आप सबको पता होगा, जैसे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये प्रोजेक्ट क्या है, तो मैंने ये पहले सेशन विद डॉक्टर नीरज सर रख दिया है और मैंने और कुछ चेंज नहीं किया। नेक्स्ट नेक्स्ट करता कि सिर्फ नाम ही ये रखा है। और अगर दोबारा रिकॉल करनी है चीजें, तो अगर आप न्यू में जाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल आपने लिख देना है। फर्ज कर ले मैं टाइटल ऐसे लिख देता हूँ, फिर आपने नेक्स्ट करना है और फिर आपने क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना, तो वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा आपका एनवीओ के अंदर। तो सबसे पहले जो आपके पास इंटरफेस आएगा वो ये आएगा इस तरीके का। इसमें पहले वो बताएगा कि फाइल्स में क्या होता है, वो आप क्लोज करके आप यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। अब फाइल्स में इंपोर्ट में आपने जब जाना है तो फाइल्स में नहीं जाना, फाइल्स में नहीं जाना, क्योंकि इसमें सिर्फ आप डॉक्यूमेंट फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आपने, क्योंकि आपका सर्वे उन्होंने एक अलग से इसकी टैब बना दी है, तो अब आपने जाना है सर्वे में, और यहाँ पे देखें एक्सेल, और ये सारे फॉर्मेट्स हैं जो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में जब आप जाएंगे तो जहां पे आपकी फाइल पड़ी है वो आपने उसको इंपोर्ट कर लेना है, डबल क्लिक कर देनी है। आई एम सॉरी, क्योंकि ये फाइल मैं आपको दिखाने के लिए ओपन की हुई थी, उसको मुझे पहले क्लोज करना पड़ेगा। अब मैंने क्लोज कर दी है और ये वेलकम टू द सर्वे विजिट आ गया। अब हमने क्लोज करके दोबारा इसको इंपोर्ट करना है ताकि ये सेंस ले सके कि वो दोबारा यूज नहीं। अब नेक्स्ट का बटन भी वो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये हमारे पास डाटा है। उसने सबसे पहले पूछना है हाउ मेनी रोज आर यूज्ड फॉर योर क्वेश्चन हेडर्स, लाइक ये वाली, ये रिस्पोंडेंट्स टाइम, स्टैम्प और जेंडर, फैमिली स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग हमने एक यूज की है। और हमने ऑर्डर क्या रखा है, जो हमने यहाँ पे डेट यूज की है, ऑर्डर क्या रखा है,
तो वो हमने यहाँ पे सेट करना है और कुछ नहीं यहाँ पे करना, हमें सिर्फ सिंपल नेक्स्ट कर देना है। अगर फर्ज कर लें एक क्वेश्चन और उसके आगे सब क्वेश्चंस भी हैं, दूसरे क्वेश्चन पे, तो हम कहेंगे कि हमारे 2 रोज हैं या 3 हेडर्स हैं, जितने भी हैं, लेकिन यूजुअली हम एक पे ही काम करते हैं, तो यहाँ पे हम एक ही, अभी भी एक पे काम करें तो हमने एक पे रखना है। नेक्स्ट। अब उसने पूछा कि जो आपने केसेस हैं, जो आपके केसेस, मतलब एक एक रिस्पॉन्स ने 18 क्वेश्चन है, राइट, इस सारे उसमें, तो एक ने जो 18 क्वेश्चंस दिए हैं उसका केस आप कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। और केस और कोड में फर्क यही है कि कोड होता है थीम, और केस होता है जिस जिस फाइल से या जिस बंदे से या जिस पर्सन से, जिस इंटरव्यू से हमने वो डाटा लेके उसमें पॉपुलेट करना है। तो एक केस हो गया। अब इसमें आइडली स्पीकिंग, अब फर्ज कर लें कि हम 6 हैं रिस्पोंडेंट्स इस सर्वे में, तो मैं का केस हो गया, डॉक्टर नीरज सर एक केस हो गए, मैम युक्ति और मैम सुरभि और सर फहद जो हैं वो केसेस हो गए। तो वो हमने कहाँ स्टोर करने हैं, वो यहाँ पे पूछना है। सिलेक्ट अ यूनिक आईडी फॉर ईच ऑफ योर केसेस। हमने कौन से किए हैं, हमने रिस्पोंडेंट सिलेक्ट किया है, उसकी बेस पे वो केस बनाए, जो 1 2 3 4 5 6 हमने 1 2 3 4 5 6 लिखे। तो इसमें अब डिफरेंट, अब इसने ये नहीं कहा कि वो पहले पे होना चाहिए, नहीं कब होना चाहिए, उसने मल्टीपल दिखा दिया, तो वो जहां पे भी होगा वो हम देख लेंगे। हो गया। और केसेस क्लासिफिकेशन जो है, अब मेरे साथ जिस तरह से ये अगर इस डाटा की बात करें तो जेंडर स्ट्रक्चर है, जेंडर है, सॉरी फैमिली स्ट्रक्चर है, जेंडर है, ये सारी मेरी कह लें कि एट्रीब्यूट्स हैं मेरे एक, तो वो उसको ये कहता है क्लासिफिकेशन। आपने क्लासिफिकेशन कहाँ करनी है, तो मैंने उसको बता दिया कि सर्वे रिस्पोंडेंट्स में। अब होगा क्या, इसमें जितने भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिकली वो क्लासिफिकेशन के अंदर कर देगा। फॉर एग्जांपल जेंडर हो गया या कुछ भी हो गया, जो भी हमारे हैं, और जो हमारे केसेस बने हैं ना उसके साथ वो ऑटोमेटिकली एसोसिएट कर देगा उन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में से डाटा लेके उन केसेस को। अभी हम करके भी देखेंगे और हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ ऐसा। तो हमने फिर नेक्स्ट करना है। अवैस, यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर। जो हमने इसमें देखा था फैमिली के बारे में क्वेश्चन था, तो उसमें ज्यादातर ने लिखा था न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली। एक दो बच्चे ने लिखा वी हैव ए फैमिली, वी आर ए फैमिली ऑफ 4। तो क्या हमें वहां टेक्स्ट फाइल में ही उसको एडिट कर देना चाहिए, 4 की फैमिली है तो वो जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर, या यहाँ पे वो बाद में हम उसको कर पाएंगे ठीक? सर इट इज इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको क्लोज एंडेड इसको कहना चाहते हैं या ओपन एंडेड कहना चाहते हैं, राइट। अभी हम जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो देखेंगे कि वो, अब फॉर एग्जांपल देखें, अब नेक्स्ट है वो जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसने क्लोज एंडेड यहाँ पे उसने खुद ही मार्क कर दिया है। ओके ओके। तो वो जो हमने उसने वी आर अ फैमिली ऑफ 4, वो इसको कहेगा कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है और वो फिर उसको एज क्लासिफिकेशन ही सेव करेगा। ये सेंस ये कहता है कि अगर आपके उसमें चंद एक ऑप्शन है, लाइक सबने कहा है कि न्यूक्लियर या जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर, और एक ने कह दिया, उसने कहा अच्छा ठीक है रिस्पोंडेंट्स तो 18 हैं लेकिन 18 डिफरेंट आंसर्स नहीं है, उसमें कुछ जो है ना सिमिलैरिटी है, तो उसने फिर क्लोज एंडेड इसको कह दिया ऑटोमेटिकली। ये इट्स अप टू अस, हम इसको ओपन एंडेड भी कह सकते हैं, ओपन एंडेड भी कह सकते हैं। तो ये सारी ये चीजें आगे रिस्पोंडेंट्स, ये तो हम वैसे ही क्लोज एंडेड है, टाइम्स क्लोज एंडेड है, जेंडर क्लोज एंडेड एंड एवरीथिंग। तो यहां से ये देखिए उसने खुद ही सेंस ले ली कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये ओपन एंडेड हैं। ये देख लें आप। और यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिख रहा है डू नॉट इंपोर्ट का, कि अगर आप अवॉइड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं आप। तो हैव यू डाउनलोडेड एनी, तो वो उसने भी इसको क्लोज है। तो इट्स एंटायरली, क्योंकि हमने ये फाइल, हमने ये क्वेश्चंस, हमने ये सर्वे कंस्ट्रक्ट किया होता है जब हमने उस पे डाटा लेने से पहले, तो हमें पता होता है कि हमने कौन सा ओपन एंडेड रखा है और कौन सा क्लोज एंडेड रखा है। और अगर आपने कुछ इंपोर्ट नहीं करना तो उसको आप सिंपली डू नॉट इंपोर्ट कर दें। तो आई डोंट नो, अब ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये हमने क्लोज एंडेड रखे हैं या ओपन एंडेड रखे हैं, और हमने इनको कैसे इंपोर्ट करना है? ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड राइट। सो अब नेक्स्ट है, ये सारा कुछ करने के बाद अब आप रिस्पोंडेंट वाइज भी देख सकते हैं, 2 रिस्पोंडेंट 2 ऑफ 18, 3 ऑफ 18। तो आप इस तरीके से भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि एक से खास तौर पे अगर उसमें से कुछ चीजें इंपोर्ट नहीं करनी तो वो फिर इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब इस स्टेज पे वो कहता है कि जो भी क्लोज एंडेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब ये अप्लाई होगा क्लोज एंडेड पे, और सॉरी आई एम सॉरी ओपन एंडेड पे। ओपन एंडेड पे, क्लोज एंडेड पे क्या थीम्स निकालने हैं?
तो आप ऑटोमेटिकली ऑटो कोडिंग थीम्स या ऑटो कोडिंग सेंटिमेंट्स आप यहाँ से वो निकाल सकते हैं। लेकिन इस स्टेज पे सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा देखना होगा कि हमारा डाटा किस तरीके से इंपोर्ट हुआ है। ये तो खैर हम बाद में भी कर सकते हैं। उस पे जो सर्वे की फाइल इंपोर्ट हुई है उस पर राइट क्लिक करके ऑटो कोड करेंगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम यहाँ पे लैंड करेंगे। लेकिन इस चीज पे मुझे नहीं लगता, क्योंकि सर अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान से एक हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे लाहौर से। तो इन्वायरमेंटल चेंज पे उन्होंने कुछ कवानीन जो है रूल्स चेंज किए हैं, तो उसके पे जो जो रिलेटिव स्टेक होल्डर्स हैं उनका ओपिनियन जानना था। तो जब हमने उसमें 18 रिस्पोंडेंट्स थे, 14 आई एम सॉरी, और कोई 15 या 16 क्वेश्चन थे, तो हमने सारी फाइल को जब हमने करा तो उस पे जब सब फाइल को ऑल टुगेदर अप्लाई किया ऑटो कोडिंग, तो उसमें से कुछ भी मीनिंगफुल नहीं निकला। क्वेश्चन वाइज हम कर सकते हैं, ये मतलब केस वाइज कर सकते हैं उस पे अप्लाई, तो फिर शायद कुछ मीनिंगफुल चीज निकले। तो फॉर अ टाइम बिंग हम फॉर ये अभी मैं इसको नहीं कर रहा, या अगर करना भी है तो हम कर सकते हैं जस्ट फॉर ट्रायल पर्पस। फिनिश। अब वो इंपोर्ट कर रहा है, अब इस पे टाइम लगेगा क्योंकि फाइल थोड़ी सी वो है। अवश्य, यहाँ पर जैसे मैम ने पूछा हुआ है कि आपका फिजिकल वेलबींग के बारे में बताइए, मेंटल वेलबींग, तो वो जो क्वेश्चन है वही तो थीम है, शायद ऐसा ही है। अगर वही थीम है, सबसे पहले तो साहब मैं डिस्क्लेमर जब देते हैं उसमें, तो हम ये कहते हैं कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में नहीं है, ये ओके। सिर्फ ये है कि सॉफ्टवेयर कैसे करता है। तो अगर तो वो है तो उसको हमने किस तरीके से करना है वो हम अभी देख लेते हैं। तो ये ठीक। आप ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होगा, जब सब पे ये साइन आ जाए तो आपने क्लोज कर देना। अब ठीक आप है। देखें, उसके बाद ये कोई बाय डिफॉल्ट एक दिखाएगा कि ये हमारी सर्वे फाइल है, ये वाली। और देखें रिस्पोंडेंट 1 2 3 4 और जो भी है ये सारी हम इसको यहाँ से देख सकते हैं। अब उसने किया क्या वो हम देख लेते हैं। ये फाइल में इंपोर्ट हुई है फाइल में। अब हम चलते हैं कोड्स में। ऑटो कोडेड थीम्स जो उसने ऑटोमेटिकली निकाले हैं वो ये निकाले हैं। ये मेंटल हेल्थ, ये मेंटल वेल, जिसने मेंटल वेलनेस के बारे में बात की, जिसने फिजिकल वेलनेस के बारे में बात की, उसने इसमें उनको पॉपुलेट कर दिया। अभी मैं इस पे नहीं जा रहा। और ये फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ रिस्पोंडेंट्स, ये अब उसने क्वेश्चन वाइज कर दिया, ये क्वेश्चन वाइज कर दिया। सो इट्स अप टू अस कि हमने ये यूज करना है वो यूज करना है। ये क्वेश्चन वाइज हो गए। एक क्वेश्चन है उसमें 18 रेफरेंसेस हैं, 18 आंसर्स हैं। और ये हो गया सेंटीमेंट के पॉजिटिव कितने लोगों ने बात किया, नेगेटिव कितने लोगों ने बात किया। उसके लिए इसके लिए सर आपने, मुझे याद है कि एक वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था, तो वो आपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, और मेरा ख्याल है कि यूट्यूब पे वीडियो पे भी है, क्योंकि वो ओपनली हर जगह पे अवेलेबल है। तो वो पढ़ने की जरूरत है कि सेंटीमेंट एनालिसिस होते हैं कैसे हैं, कि एक फ्रेज में एक पूरे सेंटेंस में वो पॉजिटिव कॉनोटेटिव और जो नेगेटिव कॉनोटेशन वाले वर्ड्स को स्कोरिंग करता है। जो जिस तरफ ज्यादा हो जाएगा वो उसको यहाँ पे कर देगा। और अगर आप देखें कि यहाँ पे वेरी पॉजिटिव और वेरी मॉडरेटली पॉजिटिव भी हैं। तो अब ये अगर फिजिकल जो है वेल बीइंग के बारे में या मेंटल वेल बीइंग के बारे में या जिसके बारे में भी हमने देखा, तो उसको अलग अलग करें, उनके क्वेश्चंस को अलग अलग करके उन पे अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं केसेस पे। हमने क्या क्या कहा था, वो जो रिस्पोंडेंट 1 2 3 जो हमने मैनुअली क्रिएट किए थे, उनमें ये डाटा स्टोर हो गया, ये डाटा सारा उनमें स्टोर हुआ और उनके 18 के 18 आंसर्स जो ओपन एंडेड हैं वो यहाँ पे हो गए। अब सवाल यह कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहाँ गए, वो जो हमने क्लोज एंडेड थे, तो हमने उसको, मैंने शुरू में बात की थी कि क्लोज एंडेड जो होते हैं वो क्लासिफिकेशन में स्टोर होते हैं, क्लासिफिकेशन में। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें सर्वे रिस्पोंडेंट्स, और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज चेक करें, सॉरी इसकी प्रॉपर्टी चेक है, तो हर एक रिस्पोंडेंट के साथ, हर एक केस के साथ उसने जो जो उसके क्लोज एंड एट्रीब्यूट्स थे ना, वो सारे उसने एसोसिएट कर दिया। मैं वापस अगर केस में जाता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ केस की, तो ये देखें एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज उसने खुद ब खुद वो जितना भी डाटा था ना, अब हमने उसको टाइम स्पेन भी उसमें वो कर दिया, तो वो इस तरीके से हो गया। तो ये तरीका है फाइल्स इंपोर्ट करने का एनवीवो के अंदर।
अब अगला क्वेश्चन है कि अब हम इसमें से निकालेंगे क्या। अब हमारा काम आता है कोड्स का। सॉरी, ये मैं इसको क्लोज करने लगा हूं। ये एक तो ऑटोमेटिकली थीम्स निकाल दिए, ये तो सारा काम है ऑटोमेटिक करने का। अब हम कहते हैं मैनुअल कैसे करना है। कोड्स में जाएं और अच्छा सर, इसमें ये होता है कि हमने पहले भी बात की है कि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम फाइल में जाएं, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें और प्री कोविड रख लें, या आई एम सॉरी इसका नाम मैंने गलत दे दिया। और यहाँ पे जाएं और लिख दें पोस्ट कोविड या प्री लॉकडाउन या पोस्ट लॉकडाउन या जो भी है, तो इनके अंदर फाइल वो स्टोर करें और आगे चल के हम देखेंगे कि वो किस तरीके से हो सकता है। अब मैनुअली हमने कैसे करना है। मैनुअली फाइल के अंदर ये वाली फाइल है, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे डिटेल व्यू में आ गए। तो अब मैं चाहता हूं कि मैनुअली इन क्वेश्चन से मैं डाटा जो है वो कोड्स में पॉपुलेट करूं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे कोड क्रिएट करेंगे। लेट्स से मेंटल हेल्थ के बारे में है ये वाला। तो जो एक सेकेंड, जो सेंटेंस या जो जितना भी एक पैराग्राफ है वो अगर इसमें पॉपुलेट हमने करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। डिटेल व्यू सेम रहेगी और कोड्स में जाके आप ये वाला व्यू जो लेफ्ट वाला है, जो मेरा लेफ्ट है, उस वो चेंज हो जाएगा। तो आपने ऐसे करके इसको ऐसे इसमें पॉपुलेट कर देना और उसी तरीके से अगर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारों को इस तरीके से करना है। ये बेहतर होता है जब हम डिडक्टिव अप्रोच यूज करते हैं। अब हमें युक्ति मैम बताइएगा कि कौन कौन से इसमें वो निकल सकती हैं सूरत, कौन कौन से कोड्स इसमें हो सकते हैं जो आपको नजर आएंगे, आपने डाटा में ज्यादा वो यूज किया होगा। बिल्कुल, जैसे मुझे लगता है कि हेल्थ, फिटनेस, एक एक करके करते हैं। जैसे अच्छा आप लिख ही रहे, हेल्थ, फिटनेस, एक्टिविटी, बिहेवियर, दरअसल हम सिर्फ इसको वो ऐसे ही कर लेते हैं। तो हमने इसमें डाटा पॉपुलेट करना है। एक तरीका तो और भी हो सकता है कि ये 18 के 18 जो अभी हम यहाँ पे लिए हैं, ये वाले आई एम सॉरी ये वाले क्वेश्चंस के हवाले से इनको हम फाइल्स में ले जाएं। फाइल्स में अगर हमारे पास बल्क ऑफ डाटा है, अब हम थोड़ा सा सर वो उसमें भी एक गोस्ट नेविगेशन में भी जा रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से कर सकते तो ये हो सकता था, इस तरीके में कर सकते थे तो ये हो सकता था। क्योंकि अगर फाइल हमारे पास इन रिस्पोंडेंट से ज्यादा रिस्पोंडेंट्स हैं और क्वेश्चंस भी बड़े लेंथी हैं। जिस तरीके से मैंने पोस्ट मैरिज फैमिली स्ट्रक्चर पे काम किया था तो 5-5 पेजेस के हमें जो रिस्पॉन्सेज जो है ना वो मौसूल हुए थे। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, अब ऑटो कोडिंग किस तरीके से हो सकती है। ये मैनुअल तरीका है कोडिंग का। ये मैनुअल तरीका है कोडिंग का। मैंने कहा था कि ये वाले जो हमने ऑटो कोड निकाले हैं ये हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए निकाले हैं, वो हमने देख लिया कि कैसे उन्हें। इसको अगर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑटो कोड है। देखो जब आप क्लिक करेंगे तो ये 4-5 ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। स्पीकर नेम तो अब अगेन इसमें अगर हम बात करेंगे तो बड़ी लेंथ वो जो वीडियो लंबी चली जाएगी। तो ये जब MS वर्ड के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी रखी हुई हो कि स्पीकर और साथ में जिसने जो इंटरव्यू दे रहा है फिर स्पीकर जो इंटरव्यू दे रहा है, तो उनको किस तरीके से केस और बाकी सारी चीजों में फॉर्म में लेके जाना, तो उसके लिए वो ये है। आइडेंटिफाई थीम्स और आइडेंटिफाई सेंटिमेंट्स ये हमने पहले ही कर चुके हैं और ये अप्लाई होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे। क्लोज एंडेड तो उसकी क्लासिफिकेशन ही होगी। यूज अ स्टाइल एंड स्ट्रक्चर, ये भी हम यूजुअली MS वर्ड पे ही देखते हैं, लेकिन इसमें हम देख लेते हैं कि क्या इसको क्या हो सकता है। कोड कॉलम्स और कोड रोज, कौन सा क्वेश्चन है और कौन से कोड में इसको करना है। ये सर वो जो है ना, एक मुझे जोक याद आ गया, आई एम सॉरी, सुना सकते हैं सर। वो ना हमारे मैं नाम नहीं दूंगा, टीचर थे।
तो उनसे किसी ने पूछा कि हम आई एम सॉरी कि हम कोट कर रहे हैं कि वुजू करते हैं हम मुसलमान वुजू करते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि सर वुजू की इंग्लिश क्या होती है। तो अब वो टीचर मेरे जैसा था, उसको नहीं आता था। उसने कहा कि 2-3 मिनट सोचा, उसने कहा कि अंग्रेज वुजू करते ही नहीं है। तो ये वाला जो है ना हमने यूज नहीं करना। ये जब हम MS वर्ड में जाते हैं ना, तो जब हम एक हेडर को जब हम हेडलाइन 1 कहते हैं, हेडलाइन 2 कहते हैं, तो उस टाइम ये उसको यूज करना। ये हमने वीडियोस में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया पिछले है। वीडियो में आपने बताया था डिटेल में। यूज एग्जिस्टिंग कोडिंग पैटर्न्स। अब लेट्स से हमारे पास हर क्वेश्चन की अलग अलग फाइल होती। तो हमने 5 क्वेश्चंस को मैन्युअली कोड कर दिया डिफरेंट कोड्स में। अब हमारा पैटर्न बन गया। हम नहीं चाहते कि ऑटो कोडिंग वाला फंक्शन उसमें यूज हो। अलग पैटर्न बन गया। तो अब हम चाहते हैं कि जिस पैटर्न पे हमने 5 फाइल से डाटा कोड किया है, बाकियों से ऑटोमेटिकली उसी जो आपने उसको डिक्शनरी दी है, जो आपने उसको वो एल्गोरिथम दिया है, उसकी बेस पे वो बाकी मुझे तो वो सारा कुछ हो सकता है। अब अगला स्टेप यहाँ से जो जाना होगा ना सर, वो ये होगा कि हमें, अब हम मैनुअल ले रहे हैं या ये जो थीम्स निकले हैं, इनमें डाटा हमने पॉपुलेट करना है। इसमें हमने डाटा पॉपुलेट करना है। अब जब सारा कुछ हो जाएगा, जब इंपोर्टेशन हो जाएगी, जब कोडिंग हो जाएगी, और सारा कुछ करने के बाद फिर हमारा एक्सप्लोर वाली जो रिबन है, वो हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो करने जा रहा हूँ वो ये वाले जो है ना, ये वाले क्वेश्चंस, सॉरी, ये वाले जो हैं एक्टिविटी, हेल्थ, मेंटल, उसने खुद ही निकाल दिए। इनको मैं यूज कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए। अब आप इस तरह से समझ लें कि हमने ये वाले जो कोड्स हैं ये मैनुअली क्रिएट किए और इनको पॉपुलेट भी डाटा मैनुअली किया, राइट? सो अवैस, एनालिसिस। यहाँ एक दो क्वेश्चन है मेरे। पहला तो क्वेश्चन ये है, जब हम मैनुअली अपना कोडिंग करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है एक ही पैराग्राफ या एक लाइन एक से ज्यादा कोड में जा पाए, कि यहाँ पर हमने हेल्थ की भी बात की है और यहाँ पे हमने फिटनेस की भी बात की है, ऐसा बिल्कुल, पॉसिबल? बिल्कुल जा सकता है। इट्स एंटायरली अप टू अस, ठीक पॉसिबल। है। और अगर हमें कुछ ये ओवरलैपिंग किस्म का कुछ देखना है कि किन किन कोड्स में ऐसा डाटा है जो इस कोड में भी गया है, इस कोड में भी गया है, वो हमें सिर्फ ऐसा डाटा दिखाओ जो मल्टीपल कोड्स में गया है, तो वो हम आगे Right. चल के एक्सप्लोर रिबन टैब में वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा, लेट्स से Correct. हेल्थ के बारे में बात किया, लेकिन उसका एटीट्यूड जो है उस सेंटेंस का या सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अब वो दोनों जगह पे जाएगा। अगर हम मैनुअली हर चीज कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे एटीट्यूड का भी करेंगे एक पूरा, सर इसके स्पेलिंग मुझे भूल गए, बताइएगा जरा सर। ATTITUT TUT, PE, हाँ जी। सही हो गया? D TUDE, यस यस, आई एम सॉरी हाँ सर, जी। मैं जरा ना सर वो नहीं, इस कोई टाइम दिक्कत नहीं। आई डोंट इसमें नो। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे एक हेल्थ है और एक मेंटल हेल्थ है, क्या इनको हम मर्ज भी कर सकते हैं? बिल्कुल मर्ज कर सकते हैं सर। जैसे ओके। फर्ज कर लें कि अगर हम इसको, आई एम सॉरी, इसको कट करके और उसके जाके उस पर, तो इसका ये चाइल्ड कोड बन जाएगा, चाइल्ड कोड अच्छा बन अच्छा जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है बताया था आपने। जैसे पेरेंट। एटीट्यूड है और उसका पॉजिटिव आ गया, हम्म अगर हम इसको नेगेटिव भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम्म लेट्स से भी हम करके देख लेते हैं कि ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है, अच्छा इसमें यूनिफॉर्म रहना है, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। अगर हम्म, आप डाटा पॉपुलेट करते हैं सेंटेंसेस की बेस पे कि एक सेंटेंस एक कोड में जा रहा है, तो अगली दफा आपने कोशिश कीजिएगा पैराग्राफ ना जाए, हो सकता है पैराग्राफ जाए लेकिन वो सेंटेंस वाइज जाए, फिर सेंटेंस वाइज जाए। और इसमें हम एक कोड भी जिस तरह से लिंग्विस्टिक्स वाले करते हैं कि एक वर्ड, वो बेसिकली वर्ड्स पे करते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसी है लैंग्वेज की, तो वो वर्ड पे काम करते हैं, वर्ड्स को पॉपुलेट करते हैं। हमने अगर सेंटेंसेस करने हैं तो सेंटेंसेस ही होने चाहिए पूरी फाइल्स में, और अगर ठीक है। पैराग्राफ है तो फिर पैराग्राफ्स होने चाहिए, क्योंकि आगे अब पैराग्राफ में फिर सेंटेंसेस होने चाहिए, पूरा पैराग्राफ एक ही दफा ना किया जाए। उससे राइट। क्या होगा कि आप देखेंगे 1 क्या है और 14 क्या है, ये समझने की जरूरत है, जो पहले भी वीडियोस में है, दोबारा रिपीट कर देते हैं। 1 फाइल का मतलब ये है कि इसमें डाटा जो है वो एक फाइल से पॉपुलेट किया है। इसकी रीजन क्या है
हमारे पास सर्वे फाइल तो एक ही है जो हम यूज कर रहे हैं, और 14 है कि कितने रेफरेंसेस, कितने सेंटेंसेस अगर हम यूज कर रहे हैं पॉपुलेट करने के लिए, या पैराग्राफ पॉपुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर हम एक पैराग्राफ करेंगे तो वो एक रेफरेंस बन जाएगा, और अगर हम एक सेंटेंस भी करेंगे तो वो भी एक रेफरेंस बन जाएगा। तो कल को जब हमने कंपैरिजन करना है तो वो फिर मसला हो जाएगा कि अगर हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रेफरेंसेस की बेस पे फिर हम नहीं कर सकते। फर्स्ट कर लें ये, तो अगर हम सर इसको नेगेटिव में लेके जाते हैं, और यही जो पैराग्राफ है ये हेल्थ के बारे में भी है, तो हम इसको दोनों जगह पे पॉपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ डाटा ऐसा है रेंडमली मैं देख रहा हूँ जो मैं सिर्फ नेगेटिव में दे रहा हूँ, लेकिन हेल्थ में मैं नहीं जा रहा। हेल्थ में मैंने, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने ये किस तरीके से वो करना है। अगर एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी मैं यहाँ पे, कि जब हम, अब जैसे आप बता रहे थे दैट या तो पैराग्राफ हो सकता है या फिर एक सेंटेंस हो सकता है, पर अगर हम रिस्पॉन्सेज में देखें तो कुछ रिस्पॉन्सेज में हमारे पास पैराग्राफ है और कुछ रिस्पॉन्सेज में हमारे पास सेंटेंस है। तो हम इनको किस तरह से फिर पॉपुलेट करेंगे, और क्या फिर ये इंटर आई मीन जो हम कंपैरिजन की बात कर रहे थे, क्या वहां पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है इस तरह का डेटा? कंफ्यूजन डाटा क्रिएट नहीं करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा हमारा वे ऑफ पॉपुलेटिंग इनटू दैट डाटा इनटू थीम्स। मैंने एक सेंटेंस में आपको जवाब दे दिया, डॉक्टर नीरज सर ने एक पूरा पेज का आपको जवाब दे दिया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आपने फर्ज कर लें कि अब आप कह रहे हैं कि ये वाला सेंटेंस जो है ना ये मेंटल हेल्थ में जाएगा, मेरे वाला सेंटेंस जो है वो मेंटल में जाएगा या हेल्थ में जाएगा, डॉक्टर नीरज सर का पूरा पैराग्राफ हेल्थ में जाएगा। अब वे क्या होना चाहिए कि मेरा सेंटेंस है तो डॉक्टर नीरज सर का भी सेंटेंस वाइज जाए, बेशक पूरा जाए, पूरा पेज जाए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ रेफरेंसेस जो हैं वो हमें बाद में उसकी बेस पे कंपैरिजन करना आसान हो। उसका बेहतरीन हल तो यह है कि नंबर ऑफ वर्ड्स की बेस पे आप कंपैरिजन कर लें, उसमें ये चीजें सारी खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो फिर हमें सेंटेंस वाइज पॉपुलेट कर रहे हैं, वर्ड वाइज पॉपुलेट कर रहे हैं या पैराग्राफ वाइज पॉपुलेट कर रहे हैं, उसमें हमें यूनिफॉर्म रहना चाहिए ताकि अगर हम कंफ्यूजन से बच सकें। अब हमारे पास सर ये सारा फर्ज कर लेंगे मैनुअली हमने सारा क्रिएट कर लिया, तो एक्सप्लोर रिबन टैब। अब जो हमने सर ने बात स्टार्ट की थी वहां से स्टार्ट करते हैं कि अब हम ये कैसे सोचें। क्वेरी में जाएंगे और कोडिंग में अगर हम जाएंगे, अब हमने ये देखना है कि डाटा जो है वो दो डिफरेंट थीम्स में या दो डिफरेंट फाइल्स में ओवरलैप कर रहा है, तो वो हमने कैसे करना है। तो कोडिंग में जाएंगे, इसमें डिफरेंट वो हम इसको कंडीशंस दे सकते हैं। ऐसा डाटा जो हमने, एक सेकंड, ये ऐसा डाटा जो नेगेटिव में भी सर हमने किया था ना, नेगेटिव में भी हो और साथ में हमने शायद हेल्थ में किया था, हेल्थ में भी हो, नेगेटिव में भी हो, सॉरी नेगेटिव में भी हो और हेल्थ में भी हो। अब इस तरह से कंफ्यूजन है, हमने उसको पहली कंडीशन दे दी कि ऐसा डाटा जो नेगेटिव में हो, ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, मस्ट बी ट्रू। ऐसा डाटा जो नेगेटिव की कोडिंग में भी हो, और एक कंडीशन हमने उसको और देनी है, और वो कौन सी होगी, जो हेल्थ में भी हो, हेल्थ में भी हो। अब हम इसको रन क्वेरी कर देते हैं, और जहां अब और वो फाइल कौन सी हो, जहां कहां से डाटा हो, एक पर्टिकुलर फाइल भी यहाँ पे हम उसको उसका वो कर सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया सेट है, उसका जो लिमिट कर सकते हैं उसको कुछ फाइल्स तक। तो यहाँ पे हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तो हमने रन क्वेरी कर दी। तो वो सर जो एक रेफरेंस था जो मैंने दोनों को मैं पॉपुलेट किया था वो यहाँ पे, या एक या दो जितने भी थे वो यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से हम उसको वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बेहतर ये है कि हेल्थ के बारे में नेगेटिव किन चीजों किन लोगों कौन सी बातें हुई हैं और पॉजिटिव कौन सी बातें हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे भी अगर हम आगे चल के ये कर सकते हैं कि एनी केस वेयर कोई एक खास हम सिर्फ फीमेल्स, ऐसा डाटा जो हेल्थ में भी गया हो, नेगेटिव एटीट्यूड में भी गया हो, लेकिन फीमेल हो, तो यहाँ से उसके लिए क्या होगा, एक कंडीशन यहाँ से हम और रखेंगे, यहाँ से प्लस के साइन के साथ,
और यहां पे हम कहेंगे कि एनी केस वेयर जेंडर मस्ट बी इक्वल टू मेल और फीमेल। अब हमारे पास जो डाटा आएगा वो मेल का होगा, और चूंकि हमने वहां पे उसको क्लासिफिकेशन में डाटा दिया हुआ है, उसको वो क्लोज एंडेड में सारा कुछ किया होगा, ऐसे इंडिविजुअल्स जो मेल हों और जिनकी ओपिनियन या जिनका डाटा जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड में भी गया हो और मेंटल में भी गया हो। अच्छा, इसमें मजीद आगे हम जा सकते हैं, एक और ऐड करें। अब कहें कि नॉट कोडेड टू, लेकिन वो डाटा जो है वो किसी एक कोड में ना गया हो, तो इस तरीके से आप जितना भी इसको वो कस्टमाइज करना चाहें आप कर सकते हैं। अब यूजुअली ये जो हम कंडीशंस, इफ दिस हैपेंस तो दिस होना चाहिए, तो वो तो एसपीएसएस वाली बातें हैं, वो तो स्मार्ट पीएलएस और बाकी सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सर आपने जो क्वेश्चन किया था उससे हमने ये डाटा लेके हम एक्सप्लोर रिबन टैब का एक फंक्शन हमने यूज करना सीख लिया। अब मैं इसको कर रहा हूं क्लोज। अब हम यहाँ पे आते हैं सिंपल वन में, इसमें फिर हम बाद में जाएंगे, या मैट्रिक्स कोडिंग क्वेरी में जाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि यहाँ पे एक तरफ रोज और दूसरा वो जो होती है उसको किस तरीके से हमने करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्ट आइटम्स, अब हम केस करते हैं, केस जो होने चाहिए वो ये सारे केस होने चाहिए, ये वाले। और दूसरी तरफ हमने क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमने ये देखना है, यहाँ पे मैं कोड सेलेक्ट करता हूँ, या कोर्स के अंदर क्या है, मेंटल हेल्थ के बारे में कितने लोगों ने बातें की हैं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक 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 मैट्रिक्स बने, एक रोज बने, उसमें मुझे पता चले कि एक ने अगली तरफ हमने क्या रखा है, मेंटल हेल्थ के बारे में कितनी बातें की हैं और दूसरे ने कितनी बातें की हैं। अब अगर उसको हम रन करेंगे तो फिर हमें आ जाएगा कि देखें, रिस्पोंडेंट 1 ने कोई बात नहीं की मेंटल हेल्थ के बारे में, रिस्पोंडेंट 10 ने, क्योंकि ये उसकी तरतीब ऐसी है, रिस्पोंडेंट 10 ने 2 रेफरेंस है उसके। अब हम ये देखें यहाँ पे जो ये आ रहे हैं ना रिजल्ट्स, अब हमें वहां पे जाना, अलाउ मी टू गो देयर, कि कोडिंग रेफरेंसेस की बेस पे हम कर रहे हैं। अगर हम फाइल्स कोडेड की बेस पे करेंगे तो हर एक में 1 आएगा, क्योंकि ये फाइल तो एक ही है जिसमें जहां से हमने डाटा लिया है। केस कोडेड यहाँ पे है नहीं, रो पर्सन वर्ड्स को देखें कोडेड, अगर हम वर्ड्स कोडेड में जाएं तो फिर देखेंगे रिजल्ट चेंज हो गए, इसमें 15 है, इसमें 37 है। अगर हम कोडिंग में जाएं तो देखें, और ये इस तरीके से अगर हम बेस्ड ऑन कोडिंग रेफरेंसेस करना चाहते हैं कंपैरिजन, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। कोडिंग प्रेजेंस यस और नो, अगर हम इसमें करना चाहते हैं तो वो यस और नो आ जाएगा, इसमें कोई कोडिंग नहीं है, इसमें यस है, वो सारी चीजें। अगर हम कोडिंग रेफरेंस की बेस पे चाहते हैं, और अगर हम देखें कि यार ये 10th रिस्पोंडेंट ने मेंटल हेल्थ के बारे में बात तो की है, लेकिन वो कौन सी 2 बातें हैं जो उसने की हैं, जो कौन से ऐसे 2 रेफरेंसेस हैं जो मैंने कोड किए हैं, तो इसको सिंपल डबल क्लिक कर दो, वो हमें उन्हीं 2 रेफरेंसेस पे ले जाएगा, उन्हीं 2 रेफरेंसेस पे जिसमें उसने रिस्पोंडेंट नंबर 10 ने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की होगी। तो मैट्रिक्स कोडिंग क्वेरी को हम इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर तो हमारे पास बहुत बड़ी फाइल होती है तो हम ऐसा भी कर सकते थे, मैं वो करके दिखाता हूँ कि दोनों जगह पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लासिफिकेशन ऐसी होती है कि मतलब फर्ज कह लें न्यू दिल्ली में इस ब्लॉक में ये लोग रहते हैं और उसके आगे उसकी जेंडर ये है या वो है, तो एक तरफ आप रखेंगे कि न्यू दिल्ली की ये लोकेलिटी और दूसरी तरफ रख दें आप जेंडर, तो आपको पता चल जाएगा कि मेल कितने रिस्पोंडेंट्स है आपके, फीमेल कितने रिस्पोंडेंट्स है। वो सिर्फ फिर कंपैरिजन करेगा विद इन क्लासिफिकेशन। तो इसको आपने कस्टमाइज कैसे करना है वो इट्स एंटायरली अप टू यू। सो टेक्स्ट सर्च को हम इसको देख लेते हैं, टेक्स्ट सर्च। अब आगे चलने से पहले एक बार यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। जो अभी मुझे समझ आया, हमने सबसे पहले डाटा को इंपोर्ट किया, हमने ऑटोमेटिक कोड भी बनाया और आपने ये भी सिखाया कि मैनुअल कोडिंग कैसे करते हैं।
तो मैनुअल कोडिंग में जैसे डॉक्टर युक्ति ने पहले सारे थीम बता दिए कि ये हो सकते हैं इस क्वेश्चन पे, और आप मैनुअली ड्रैग कर सकते हैं। ये सारा करने के बाद ये सबसे पहले आपने जो ऊपर हमें टैब दिख रहे हैं, इंपोर्ट के बारे में आपने बात की थी, फिर आपने क्रिएट में कोड की बात की, फिर अब आप एक्सप्लोर पे बात कर रहे हैं। एक्सप्लोर में आपने सबसे पहले तो ये बताया कि आप एक क्वेरी जनरेट कर सकते हैं जिसमें आप कोई भी कोड, कोई भी क्वेरी कर सकते हैं कि ऐसा कोड बताइए जो इस थीम में भी है, इस थीम में भी है, जेंडर में है, ये कहा ये नहीं कहा, वो क्वेरी जनरेट आप कर सकते हैं। राइट। सेकंड आपने बताया कि मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। मैट्रिक्स बेसिकली आपका ये बताएगा, एक एंड पे आपने केसेस दे दिए, एक पे आपने कोड दे दिए, कितने बंदों ने उन कोड्स के बारे में बात की है, उनकी फ्रीक्वेंसी टाइप आ गई, डबल क्लिक से एग्जैक्ट आ जाता है। वेरी राइट, यहाँ तक आपने बताया, वेरी राइट, करेक्ट? बिल्कुल सही सर। और मैं देख रहा हूँ फराहत और सुरभि बहुत ही ध्यान से समझ रहे हैं सारी चीजें, तो अगर उनके कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे, सुरभि या फराहत। अवैस, मुझे यह बताना कि ये जो हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं, तो ये कुछ वैसा ही नहीं हो रहा जिसमें हम डिफरेंट न्यूज स्टोरीज पढ़ते हैं और न्यूज स्टोरीज को पढ़ते हुए अगर हम मैनुअल कर रहे हैं इसको ये दिन में रखना, हम क्या कर रहे हैं, न्यूज स्टोरी को पढ़ते हुए उसमें डिफरेंट जो सेंटेंसेस यूज किए गए हैं हम उसको रख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर भी रख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम डिफरेंट थीम्स के अंदर भी उसको रख रहे हैं। तो ये जो यानी एक न्यूज स्टोरी है या एक एडिटोरियल है, तो एडिटोरियल को पढ़ते हुए जहां जहां पे वो कुछ पॉजिटिव बातें कर रहा है तो पॉजिटिव वाली, जहां पे नेगेटिव कर रहा है तो नेगेटिव वाली जो है वो हम कर देते हैं। नॉर्मली जब हम एक्चुअली उसकी करते हैं क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो उसमें तो हम उसको पूरे को किसी एक पोर्शन में रख देते हैं, हम कहते हैं कि बाकियों में नहीं, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव में जिस जिस एरिया में सेंटेंसेस हम रखना चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाली साइड पे उसको सेंटीमेंट देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम सेम एडिटोरियल को हम डिफरेंट जो थीम्स हैं उनके अंदर भी रख सकते हैं। ये ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट ऑफ देखिए ना, बॉटम लाइन इज कि हम दोनों साइड्स पे डील टेक्स्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, सर्वे की फॉर्म में भी, और अगर हम कंटेंट एनालिसिस करें तो जो बेसिकली जो मेरी सेंस है कि वो जो इंटरव्यूज करने के बाद भी एट द एंड आपके पास कंटेंट ही होता है जिसका आपने एनालिसिस करना है। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? सही है। तो हाँ, उसमें भी क्वालिटेटिव टाइप वो सारा मटेरियल हमारे पास होता है। हाँ, अब अगर आप उसको बड़ा ही वो जो सर्टेन फॉर्म्स में लेके जाते हैं तो वो समझ लें कि आपने वो डिडक्टिव अप्रोच यूज कर लिए, और तो आप इसके ऑटोमेटिक कोडिंग की तरफ नहीं कि दोनों साइड्स पे। तो जो मैं इसमें सेंस लिया कि दोनों तरह से अगर आप कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं या अगर आप वो कर रहे हैं, प्राइमरी ले रहे हैं, सेकेंडरी डाटा ले रहे हैं, है तो बेसिकली टेक्स्ट ना। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा कि जब हम रूटीन में ऑटो कोडिंग करते हैं तो वो दो चीजें निकाल लेता है, एक तो वो थीम्स निकाल लेता है, साथ में उनके सेंटीमेंट्स भी निकाल लेता है, ऐसे ही है? नहीं, थीम्स हम, ये हमारे पास चॉइस है, थीम्स हम अलग निकाल सकते हैं और जो सेंटिमेंट्स है वो अलग निकाल सकते हैं। लेट्स से ये मैं आपको करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल्स में है ना, अगर हम इसको ऑटो कोडिंग करेंगे, ये देखिए, ठीक है, ठीक है, दो ये दोनों अलग सेपरेट हो गए। अब अगर मैं मैनुअल कोडिंग कर रहा हूँ तो मैनुअल कोडिंग में मैंने ये दोनों काम खुद करने हैं, यानी एक तरफ मैंने थीम भी निकालना है और दूसरी तरफ मैंने सेंटीमेंट भी निकालना है, या अगर सेंटीमेंट का मेरा क्वेश्चन नहीं है, रिसर्च क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मैं सेंटीमेंट की तरफ जाऊंगा भी नहीं? अगर आपका उसका रिसर्च क्वेश्चन ही नहीं है तो फिर आपने अपने आप को जरूर दिखाना है उसमें करने के लिए। मैनुअल तरीका ये है कि आप उसका, इसको एटीट्यूड कह लें या सेंटीमेंट कह लें, उसका मैनुअल कोड जनरेट कर लें, पॉजिटिव नेगेटिव मॉडरेटली पॉजिटिव, या आप लिकर्ट स्केल पे बेसिक इसको ले जाएं, समझ रहे? तो फिर आप मैनुअली करते जाएं। तो एटीट्यूड मेरा जो बेसिकली थीम है और उसके नीचे मैंने उसकी सेंटीमेंट्स भी उसका जनरेट कर दिए। अब ये तो मैनुअल नाम है में ना, मैंने इसको सेंटीमेंट कह दिया तो सेंटीमेंट बन गया। नाम है, आप उसको जो मर्जी दे लें, तो मैंने उसको एटीट्यूड दिया था, अब आप सेंटीमेंट उसको कह लें। तो इट्स एंटायरली अप टू अस कि हम उसमें से क्या चीजें मैनुअली कर सकते हैं। अब अगेन फिलॉसफी वही रहेगी कि डाटा जो नेगेटिव होगा मेंटल के बारे में, वो मेंटल में भी जाएगा और नेगेटिव में भी जाएगा। इसकी एक वजह है ये करने की। एक तो तरीका ये है कि सर फराज साहब कि हम मेंटल के नीचे भी पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट करते हैं, मेंटल हेल्थ के नीचे भी करते, मेंटल वेलनेस के नीचे भी दोनों करते, तो हमें बहुत सारी जगह पे डाटा पॉपुलेट करना पड़ जाता। और चूंकि हमें ये सॉफ्टवेयर बाद में ये एक देता है, ये
ऑपरेशन जो है ना परफॉर्म करने की, कि आप इसको जो ओवरलैपिंग टेक्स्ट है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस वजह से हम ये करते हैं। तो ये आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि हम एक अलग से टैब जनरेट कर लें या थीम जनरेट कर लें, इसका नाम सेंटीमेंट हम रख दें, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, वो चूंकि पहले भी मुख्तलिफ थीम में वही सेंटेंस रखे होंगे, वही सेंटेंस जब नेगेटिव पॉजिटिव में आएंगे तो उनकी वो सेंटीमेंट का आइडिया भी हमें हो जाएगा। बिल्कुल सही। और बट एट द सेम टाइम हम ये भी कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के नीचे ही हम जो टेक्स्ट है उसी को डिफाइन कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी कर सकते हैं हम जो। वो मैं अगेन वो कह रहा हूँ कि वो थका देने वाली प्रैक्टिस है। ठीक वो है, फिर आपको फिजिकल वेलनेस के नीचे भी करनी पड़ेगी। वो सबके नीचे करना पड़ेगा। सब इस तरह से ये होगा कि चूंकि वो ओवरलैपिंग है तो आप एक अलग से कोड जनरेट करते हैं, और आगे चल के हम एक्सप्लोर रिबन के अंदर जाके क्वेरीज के अंदर कोडिंग में जाके हम उसको कर सकते हैं। और वो जो रिजल्ट्स आए, अगर आपको ऐसा डाटा चाहिए जो सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड से रिलेटेड हो, तो जो भी रिजल्ट है उसको कॉपी करके एक कोड जनरेट कर लें और उसके अंदर डाल दें। मैं समझ गया के बजाय कि आप हर एक के थीम के नीचे उसके पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करें, उससे बेहतर यह है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव का एक सेपरेट से थीम जनरेट करके उसके अंदर रखते जाएं। वो सबको वो बता देगा कि ये एक्चुअल में मेंटल हेल्थ का था और फिर बाद में वो हो गया है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हमें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हमें इसको सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं रखना चाहिए कि ये सिर्फ एटीट्यूड या सेंटीमेंट के बारे में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाहौर से भी जो हम डाटा जिस पे हम काम कर रहे हैं वो था कि ये 2002 के रूल के बारे में है, 2022 के रूल के बारे में है, ये वाला एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट, राइट। अब एक तो तरीका ये था कि हर एक अमेंडमेंट के नीचे 2002 2008 लिखते, 2002 हर एक के नीचे। क्या किया कि हमने एक अलग से उसका कोड बना दिया ईयर का, ये कुछ भी, तो डाटा उसमें भी पॉपुलेट हुआ और उसमें भी, और बाद में हम जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डाटा ओवरलैप कर रहा है। सही। अवैस, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं अभी भी थोड़ा सा ऑटोमेटिक कोडिंग में फंसा हुआ हूँ। मुझे मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलनेस, ये तीनों बहुत ही ओवरलैपिंग लग रहे हैं। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि एक ही क्वेश्चन में से कुछ पोर्शन मेंटल हेल्थ में चला गया हो और किसी और का मेंटल वेलनेस में चला गया हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? 100% पॉसिबिलिटी है सर। अच्छा, 100% है। अच्छा, ओके। इसके बारे में मैं कहूँ कि एक सेंटेंस जो है सर, वो मेंटल वेलनेस के बारे में भी बात कर रहा हो और फिजिकल वेलनेस के बारे में भी बात कर रहा हो, तो आइडियली स्पीकिंग उसको दोनों में जाना चाहिए, दोनों राइट। में जाना। तो वो फिर जो तो जो आपने दूसरा तरीका बताया, युक्ति मैम ने पहले लिखवा दिए और मैनुअल करे, थोड़ा लंबा है पर वो ज्यादा फुल प्रूफ सा लग रहा है। वो फुल प्रूफ है सर। आपको आप जैसा से हमेशा कहते हैं कि जो हमारा जो हम माइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको ज्यादा डील कर रहे होते हैं, इसमें तो एक सर्टेन एल्गोरिथम के जरिए जाना है। तो राइट वो राइट। सबसे बेस्ट है कि ये आप मैनुअली क्रिएट करें। अच्छा, ऑटो कोडिंग सर ये हमेशा नहीं वो कहते कि आप इसको अप्लाई करें, सिर्फ ये राइट। कहते हैं कि अगर आप आइस ब्रेकिंग के लिए या आप सिर्फ ये देखना हाँ, चाहते हैं कि आपके थीम करेक्ट। क्या निकल सकता है आपकी फाइल से, एक परफेक्ट। हिंट लेने के लिए वो आप लिखें, फिर उसका कोड बनाएं और फिर वहां पे स्टार्ट हो जाएं। एब्सोल्युटली। जैसे या आपने कहा अवैस कि पहला पर्सन जो है, आपके जो नीचे राइट साइड को टेबल है, उसमें आपने कहा कि फर्स्ट पर्सन ने मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं की। ऐसे ही मुझे है। यही थॉट आ रहा था कि हो सकता है इसने मेंटल की बात की हो पर वो मेंटल वेलनेस में चला गया हो जो इसने बात की हो। हो सकता है सर। तो उसका ये तरीका है कि आप यहाँ पे राइट साइड पे मेंटल हेल्थ के साथ साथ ओके, आप यही पूछना चाह रहा था मैं कि मेंटल वेलनेस भी आ जाए और मेंटल भी आ जाए, तीनों आ जाए। ये तीनों आ जाती हैं सर, ये तीनों आ जाएं। अब हम राइट। इसको रन क्वेरी करते हैं। अब देखें करेक्ट। उसने मेंटल वेलनेस के बारे में 2 दफा बात की है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उसने दूसरे ने जिसने मेंटल हेल्थ के बारे में 2 दफा बात की है, उसने मेंटल मेंटल वेलनेस के वेलनेस के बारे में बारे कोई में। बात नहीं की। हम्म। ये सब बड़ा मजेदार सा एनालिसिस तब होगा जब हमने मैनुअली सारा डाटा कोड किया होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर हमें सही सेंस बनती है कि ये इसमें अच्छा क्या कहा है उसने, वो हम फिर ये डबल क्लिक करके वहां पे चले जा हम्म। सकते हैं। एक दफा हम्म। पढ़ लेते हैं कि इसने कहा क्या है। हम्म। Mental wellness can attribute to less amount of stress and less chances of falling into any mental illness such as depression. अच्छा, इसके बारे में भी फिर हम आगे चल के उसमें एटीट्यूड के बारे में भी बात कर सकते हैं कि वो एटीट्यूड। अच्छा हाँ, एक और चीज सर, क्रॉस टैब। हम्म। यहाँ पे हम रखें कोड, फर्ज कर लें कि वही
मेंटल हेल्थ के बारे में। और यहां से अगर हम रखें सर्वे रिस्पोंडेंट्स, मुझे ऐसा डाटा दिखाओ जो मेंटल इसमें गया हो जेंडर की बेस पे, और दूसरा जो है वो फैमिली स्ट्रक्चर की बेस पे। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या क्या निकाल के देता है। एक सेकंड, रन करिए। इस एनबीओ का फॉन्ट बहुत छोटा है यार। सर आपके तो नहीं लगी हुई, मेरे और फरहाद साहब को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे भी है, मैंने लगा नहीं रखा चश्मा। तो सर देखें कि मेंटल वेलनेस के बारे में जेंडर फीमेल, हम्म फीमेल और फैमिली स्ट्रक्चर न्यूक्लियर न्यूक्लियर हम्म। उनके बारे में आगे चल के हमारे पास कितने रेफरेंसेस हैं। तो ये सैंपल साइज है, 2 का मतलब 2 रिस्पोंडेंट्स ने कहा है। अब ये अगेन यहां से सर वो हम यहां से कर सकते हैं। केसेस कोडेड 2, वेरी रेड सैंपल, कोडिंग रेफरेंसेस 4। तो ये हमने कस्टमाइज यहां से करना है, यहां से ये हो गया। तो अगर आपने कोर्स, अच्छा कोर्स और अच्छा इसमें एक और बड़ी जबरदस्त बात जो मुझे अभी याद आई सर, मैनुअल कोडिंग। मेरा एक क्वेश्चन था इसमें कि ये जो दोबारा टेबल पे जाइएगा जरा। अच्छा आप टेबल पे, मैंने वो क्लोज कर दिया है, राइट। तो ये लास्ट रन क्वेरी, इसको क्लिक करेंगे तो वो ओके, सेम चीज आ जाएगी। ये वाला नहीं, इससे पहले वाला जो एक टेबल था, खैर मैं वो नहीं उसमें निकल दी, वो हम अपन दोबारा करनी पैनी है सर। मैं इसमें इसका मैं इसका उसमें मतलब हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, सॉरी फराज जी, क्योंकि हम जो भी इसमें एनालिसिस कर रहे हैं वो या तो हम साइमल्टेनियसली कहीं पे सेव करें, बिकॉज अगर वो हम डेटा लूज कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, तो पीछे वाला ऑटोमेटिकली 0 होता जा रहा है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैम कि डाटा तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब आप सेम क्वेरी सेम फाइल्स पे सेम कोड्स पे अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स चेंज नहीं होंगे। तो अगर आपको एक्सप्लोरेबल टैब एक्सप्लोर करना आती है तो यहाँ से क्लोज भी हो गया, तो क्वेरी एक्यूरेट होनी चाहिए, रिजल्ट्स वही रहेंगे। जी फराज साहब, आई एम सॉरी। मैं ये कह रहा था कि जो प्रीवियस आपने जो क्वेरी रन की थी उसके अंदर जो जैसे सर ने कहा था मेंटल हेल्थ का और मेंटल वेलनेस और वो सब जो शो हो रहा था, उसमें एक चीज मुझे बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो पर्टिकुलर वर्ड को देख के देखता है कि वो उसने किसी ने अपने जो सेंटेंस के अंदर जो है वो पर्टिकुलर वर्ड यूज किया होगा। जैसे मेंटल हेल्थ का अगर वर्ड है, एग्जैक्टली वो वर्ड होगा तो वो उसको काउंट कर रहा है। अगर वो मेंटल हेल्थ की बजाय वर्ड जो है, हमने इसको सर्च करने को कहा कि मेंटल हेल्थ सर्च करो, और अगर उसमें वर्ड उसने मेंटल वेलनेस का यूज किया हुआ तो वो फिर किसी और कैटेगरी में चला जाएगा रेदर देन कि वो मेंटल हेल्थ में जाए। ऐसा ही है। अगर तो आपने ऑटोमेटिक कोडिंग जो हमने की है कि मैनुअल ऑटोमेटिक कोडिंग वाले थीम्स यूज किए हैं, फिर तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर आपने किया ही मैनुअल है तो मैनुअल में तो फिर मेंटल वेलनेस वाला मेंटल फिजिकल जो उसमें नहीं जा सकता। मैं ऑटो कोडिंग की बात कर रहा हूँ कि आप ऐसा फिर तो लग जा रहा है सकते जैसे हैं, फिर तो कि जा सकते मेंटल हेल्थ में वो पर्टिकुलर जब हम वर्ड सर्च कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली वो कीवर्ड को ही उसमें इन्वर्टेड कोमास में सर्च कर रहा है कि एग्जैक्टली वो वर्ड अगर यूज किया गया तो मुझे बताओ। अगर उसमें मेंटल का वर्ड है, हेल्थ का वर्ड नहीं है, तो वो उसको एक्सक्लूड कर रहा है। ये हम वैसे अगर मैं सही समझाऊं तो हम टेक्स्ट सर्च में भी कर सकते हैं, वर्ड फ्रीक्वेंसी इसमें कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जब फराज साहब जब वहां पे जाएंगे तो मुझे ये दोबारा बताइएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमने कोडिंग के बारे में बात की है ना सर, ये कोडिंग के बारे में, इसके बारे में, कोडिंग क्वेरी के बारे में, इसका एक बहुत और एक और बड़ा फायदा है। इफ यू अलाउ मी, तो क्या मैं सर सैंपल प्रोजेक्ट ओपन कर सकता हूँ सिर्फ इस एक चीज को समझने के लिए? इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ये सारे प्रोजेक्ट में यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, और यहां से मैं क्लोज करके सैंपल प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ। ये सैंपल प्रोजेक्ट हम सब ने देखा है, तो देखें कोड्स में एटीट्यूड भी है और उसके अंदर ये सारी चीजें भी हैं। अब हैविंग सेड दिस के एक सेंटेंस 2 कोड्स में जा सकता है। व्हाट इफ एक सेंटेंस हमने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, डाटा उसमें दिया, और स्टूडेंट्स जो हैं वो कहें कि सर तो एमए रोज ही काम दे देते हैं मेरे जैसे,
तो उन्होंने डाटा को नेगेटिव में भी डाल दिया और पॉजिटिव में भी डाल दिया, बड़ा मसला हो जाएगा। ये कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो यही कोडिंग क्वेरी, और दोनों साइडों पे वही चीज, सॉरी मैट्रिक्स कोडिंग क्वेरी, और इस साइड पे भी मैं रखूंगा ये वाले कोड्स, और इस साइड पे भी मैं रखूंगा ये वाले। ये भी ऐसा भी हम कर सकते हैं। आई एम सॉरी, ये मैंने इसलिए किया, ये जब ऐसे करेंगे तो फिर सिलेक्ट नहीं होगा। ओके, इससे तो सिर्फ डायगोनल पे आना चाहिए। अब सब देखते हैं। अब हम रेफरेंस देख रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये 11 रेफरेंसेस हैं। ये बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, तो इसको डबल क्लिक करके देखें और इनको अनकोड करें जहां पे ये नहीं जाना चाहिए, और फिर जहां पे पॉजिटिव, इसको यहां पे फिक्स करें। अगर हम खुद एग्जॉस्ट हो गए और हमने कोडिंग में थोड़ा सा मसला आ गया, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि एनालिसिस करना है, वो तो एक क्लिक वे है, एक्सप्लोर रिबन टैब तो एक, लेकिन सारी पीछे चीजें वो हो रही हैं जो हमने कोडिंग वाले स्टेज पे किया था, तो ये मैं दिखाना चाहता था कि इसको इस तरीके से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कि अगर हमने एटीट्यूड के बारे में इस तरीके से कुछ चीज फिक्स करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं वापस जाता हूँ वहां पे हमारे अपने प्रोजेक्ट में। अवैस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए, तो आप एक बारी एक स्ट्रक्चर बता देंगे ताकि हम फिर अगले सेशन में माइट भी शायद इसको कंटिन्यू कर लें। ओके सर। तो सर हाँ अभी जी। तक जो हमने बात किया उसको मैं वाइंड अप कर लेते हैं कि हाँ जी। हमारे पास फाइल थी, उसमें 18 रिस्पोंडेंट्स थे आई गेस, और क्वेश्चंस थे सर्टेन, वो कितने थे वो अब मुझे याद नहीं है। 26 तो के करीब। हाँ जी, तो हमने सबसे पहले तो उसको देखा कि जिस तरीके से हम उसमें करते हैं एसपीएसएस में, हमने एक क्रिएट किया रिस्पोंडेंट का टैब 1 2 3 4, नेम भी हो सकता है, ईमेल एड्रेसेस भी हो सकते हैं, एनीथिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो वो हमने कर लिया, और फिर उसके बाद हमने इंपोर्ट में जाके सर्वे फाइल में वो इंपोर्ट नहीं होगी, सर्वे वाली फाइल सर्वे से ही इंपोर्ट होगी। उसमें वो हमने करके देखी, ये वाली फाइल आ गई, और कुछ डिफरेंट हमने बॉक्सेस के जरिए उसको कह दिया कि ये वाले केसेस हैं, ये वाला जो बॉक्स है वो केस है, ये वाले जो है वो ओपन एंडेड है, ये वाले क्लोज एंडेड है, वो सारी चीजें होगी। और वहीं पे हमने उसको अप्लाई, जो ऑटो कोडेड थीम्स और सेंटिमेंट्स हमने उसको कह दिया, जो कि आइडियली स्पीकिंग हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने चूंकि ये अभी वो कर रहे सीखने के लिए, तो बेहतर तरीका ये था कि हम क्वेश्चन वाइज करें। अब सर इफ यू अलाउ मी, तो मैं एक फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करूँ, और उसके बाद हम देखेंगे क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे एक टेबल्स के नेम से फाइल होगी, टेबल्स। अगर आप ये वाली फाइल देखिए, मैं सर उसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो फिर आपको नजर आ जाएगी। नजर आ रही है सर? कैन यू सी दिस फाइल? इसको मैं अगर डबल क्लिक करूँ तो ये देखिए इंटरव्यू 1 और वो सारी चीजें की हैं। अब मैं इस पे करता हूँ ऑटो कोडिंग अप्लाई। अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन ये है, इंटरव्यू 1 और उसके आगे क्वेश्चंस उसके आंसर्स, और फिर इंटरव्यू 2, यहाँ पे इंटरव्यू 2 क्वेश्चंस, ये इंटरव्यू 4 और उस तरीके से। ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्यों? क्योंकि जब हम ये सारी फाइल पे ऑटो कोडिंग अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या होगा इसमें। तो बजाय इसके कि अब जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम इस तरीके से करें, अब मैंने अपने स्टूडेंट को, जिसको मैंने ये कहा, उसमें एक तो इतना ज्यादा डाटा आ गया, और दूसरा ये है कि उसने कहा कि सर ये तो मेरे की वो जो थीम्स ही नहीं है। तो फिर मैंने उसको कहा कि आपने ये कंस्ट्रक्शन ही गलत है। आप अगर आप इसको इंटरव्यू वाइज ना करें, आप इसको क्वेश्चन वाइज करें। मतलब फर्ज कर लें कि की शॉर्टकमिंग्स इन द रेगुलेशंस ऑफ 2000, इसका हमारे पास एक फाइल होती, उस पे अप्लाई करते तो हमें पता चलता कि इसमें कौन कौन से थीम्स हैं क्वेश्चन वाइज, राइट? तो ये भी हो सकता है। तो ऑटो कोडिंग बड़ी सोच समझ के हमें यूज करनी वैसे पड़ेगी। वैसे ये जो भी आपने बात कही है इस टेबल के बारे में,
हाँ, वैसे भी हमारा जो थीम है वो अहम चीज है, इंटरव्यूअर हमारा अहम चीज नहीं है। यानी मेन तो हम उनमें से थीम्स निकालना चाहते हैं। तो अगर आपने फोकस सारा इंटरव्यूअर पे कर दिया है तो टेबल ये ऐसे ही बनना था। अगर आपका फोकस थीम्स के ऊपर था तो डेफिनेटली फिर आप थीम वाइज उसको लेके चलते हैं कि क्या किस क्वेश्चन का आंसर किसी ने क्या किया है। उसमें हम कुछ रिस्पोंडेंट को बीच में ऐड करते हैं, सबको तो ऐड भी नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि मेन क्रक्स क्या निकल रहा है, सभी लोग क्या बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जो है। उसे डंडी मार गए हो ना क्वांटिटेटिव रिसर्च वाले। सर अब मैं इस पे आई एम सॉरी, ये देखें सर कि एक एक अब जो क्वांटिटेटिव में होता है आउटलायर्स, फराज साहब आपने हमेशा सिखाया है, इसमें मेरा ख्याल है जो आउटलायर होगा ना वो आपका की रिस्पोंडेंट होगा, वही तो आपको डाइवर्स थीम्स देता है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च में हम कहते हैं कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर बंदा इंपॉर्टेंट है। तो सीधा कहता कि नहीं बंदे माइनस नहीं कह करो। हाँ जी, रहा, मैंने उनको माइनस नहीं किया। मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्वेश्चन वही रहेगा। उस क्वेश्चन में जैसे जैसे कोई नई बात आती जाएगी वो एडअप होती जाएगी, हम उससे इनकार नहीं कर रहे। सही पर कह मैं रहे ये कह रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन यानी पर्सन वाइज सबको जो है ना उनको ऑर्गेनाइज किया है, उसकी बजाय अगर वो उसको ऑर्गेनाइज करते क्वेश्चन वाइज, तो हम ये नहीं कह रहे कि रिस्पोंडेंट ने अगर कोई नई बात की तो हम उसको डिलीट कर देंगे। वो आएगी, बात आएगी, लेकिन वो पर्सन साथ में ऐड होते जाएंगे उसमें क्वेश्चन के हिसाब से जो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर अगर हम ये देखना चाहें, हम इसको एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं, मतलब लाहौर के बारे में अगर हम सर्च करना चाहते हैं कि लाहौर में हेल्थ के ऊपर इशू है, अब हमें ये देखना है कि एक इशू है जिस पे लोगों ने बात की है, मतलब फर्ज कर हरासमेंट है या कुछ भी कह लें, वो मेंटल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ है या कुछ भी है। अब हमने उसके साथ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लगाई हैं तो हमें पता चल सकता है कि किस एरिया के लोग में, फॉर एग्जांपल जौहर टाउन में, डिफेंस में, या किस एरिया में जो कौन सी जो ये जो हेल्थ के बारे में रिलेटेड इश्यूज हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट किस एरिया के हैं, ताकि पॉलिसी मेकिंग में हमें फिर उस एरिया को उसके मुताबिक टारगेट करना हो जाए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं टेक्स्ट के हवाले से, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन रिस्पोंडेंट्स के हवाले से हम उसको जब इस तरीके से भी जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये ट्रू सेंस में ना एक जर्नी पे हैं, जब हम एनजीओ पे हैं, एक जो रिसर्च की जर्नी हम करते हैं ना, जैसे कभी कभी क्वांटिटेटिव में मैं फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को ना कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं कि इसमें ये ही लगेगा और ये नहीं हो सकता और ये हो सकता है, और कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिसर्च उसको प्रूव भी करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए। बट यहाँ पे ऑप्शंस इतने सारे हैं, ऑल्टरनेटिव्स इतने सारे हैं कि जब भी नया रास्ता देख रहे हैं तो देख रहे हैं उसमें और 4 पाथ निकल कर आते हैं, फिर उस पाथ पे चलते हैं तो उसके अलग पाथ निकलेंगे, या वापस जा रहे हैं तो कुछ और निकल कर आ रहा है। तो जो एक रिसर्चर की जर्नी है ना, वो इसमें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट हो सकती है। मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। ये क्वांटिटेटिव वालों से पूछ लें अगर इनका कोई डिफरेंट ओपिनियन है सर तो। क्वांटिटी वालों का ये कहना है कि एक फ्लो चार्ट बता दो पहले ताकि हमें पता हो कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। कि एक जैसे आपने बताया कि हमने इंपोर्ट किया, कोड्स कर दिए ऑटोमेटिक या मैनुअली। उसके बाद आपने कहा कि आप जाके एक्सप्लोर के अंदर आपने कहा कि आप अपनी क्वेरीज रन कर सकते हैं, मैट्रिक्स कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके और आगे और हम क्या क्या करने वाले हैं अगले सेशन में? फिर अगले सेशन में सर हम कोडिंग कंपैरिजन ये होगा कि ये जो इंटरकोड रिलायबिलिटी है इसमें भी अब क्वालिटेटिव आ जाएगी। इसके अंदर भी थोड़ा सा वो जो कोएफिशिएंट्स हैं वो होंगे कि अब फर्ज कर लें कि हमने मतलब हम एक रिसर्च ग्रुप है और हमने उस पर काम किया है, तो मेरी और फराज साहब की जो कोडिंग कंपैरिजन है, कोडिंग वो क्या कहता है एग्रीमेंट है, वो जो कापा की वैल्यू है, ये वो जो होल्स्टाइ फार्मूला है 80% या 90%, तो वो इसमें हो सकता है। और इसकी क्या आगे इसको पढ़ने के लिए आपको किन किन चीजों को जहन में रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट तो आ सकता है, लेट्स से कि 90% एग्री है मैं और फराज साहब, लेकिन 90% 100 में से 90% डाटा हम दोनों ने कोड नहीं किया, तो 90% एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन वो ये गलत एग्रीमेंट है, ये आपको मिसलीड कर सकता है। तो उसके अल्टरनेटिव क्या है तो वो हम देख सकते हैं। और साथ में क्रॉस टैब हमने विजिट कर लिया। ये जो है ये टेक्स्ट सर्च, और अगले जो हम अगर इस सेशन में हम बात नहीं कर सके तो अगले सेशन में सॉरी हम ये वर्ड फ्रीक्वेंसी और टेक्स्ट सर्च क्वेरी को देखेंगे, टेक्स्ट सर्च करेंगे और ये वाली चीजें एक्सप्लोर कर लेंगे सर। और साथ में ये जिस तरह से मैम ने ये डाटा कलेक्ट किया है, अगर ये इसी प्रोजेक्ट में
चूंकि हम सिर्फ मैं और फराह साहब मीडिया के हैं, तो अगर हमें इंटरव्यूज के साथ साथ कुछ हैशटैग मिलता है ट्विटर से, उसका डाटा भी हमने इनकॉर्पोरेट करना है हमारे रिसर्च स्कॉलरशिप में। तो ये दोनों चीजें कैसे होंगी, तो फिर वो हम इसको भी देख सकते हैं। तो ये चीजें हम अगले सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, अगर वी आर इन शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ, इफ वी आर इन शॉर्ट ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से बिल्कुल हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि 1 आवर प्लस हो गया है ये, और फिर आगे हम इससे